हम नीलाल करालपुरा पे पहुँचे हैं जहाँ की ये लड़की थी। तो यहाँ सफ़े मातम इस टाइम ज़ोर शोरों पे हैं, आप खुद ही विजुअल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक की आँख नम है। तो बराए करम ऐसा जहाँ कहीं भी हो डोमेस्टिक वायलेशन में, जहाँ कहीं भी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती या जातियाँ की जा रही है, हमें एकजुट होकर इन जातियों के खिलाफ लड़ना होगा और इन जो जातियाँ हो रही इनको कम करना होगा। हमें अवेयर होना होगा, हर एक को एक जिम्मेदार इंसान बनना होगा। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी, आपके इलाके में कहीं भी ऐसा हो रहा है, किसी लड़की के साथ मार पिटाई या कोई भी जाति हो रही है, तो बराए करम उस जाति को रोकने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, उस घर तक जाइए, उस आवाज़ को रोके, उस जुल्म को रोके। तो अब हम जानना चाहेंगे इन लवाकिनों से कि क्या हुआ, क्या मसला क्या था, कैसे हुआ ये जो वाक़या पेश आया, तो कैसे आया। वापस पन्नी कूम तो मैं फोन कहता है कि मैं शायद मजाक ही कराएंगे तो आज कहता बता दो आज दे रहे हैं न कोई और न फोन में तक पाला नहीं फटाफट बोले पाला हम जाए तो एक चाहिए तो वो तो क्राउड को इनको फोन है ना अब को फोन है इस को बोल मैं तक कौन से आईटी एंजे हेल्थ ना कि ये तो बस गांव बात है ते पत क्या शिकार आईटी वशो बहुत गांव बहुत आज गांव में आज उन्हें आग्रह देश वो टिक देवा उन्हें कोर्स बिल्कुल ठीक ठाक तुम सोचा कम प्रॉब्लम आई सोन स्कूल नहीं गया ये चल बहुत ये बिल्कुल ठीक है मुझे कम प्रॉब्लम यूं मान बड़ी मलकस ब्याह नशे ام سو مام سے کہ مام تو بوے سوچ تمون ام چھ کم کم اج بر مچ بائک پر ان جے بر بائک پر وابن تو گام سے مس کیا کونس کس کونس بس گارا ان چھ کا پایا ام تو موبائل سے جا کوئی گارا ای کمرہ میں گایم اس کوئی میں آبیا مس کو بھی کتے سے گئی سگس کو زا میں کھانا بابا زا کی بمورا یہ چھ الفاظ بمورا یم تم آخری الفاظ تم بوجو تم پنو کنو بوجو نے بوز ڈاکٹر استاجی اور سوال استاجی اور میں چھ تا زا کما کی بمورا لاش مطلب زبان چھ بیان بسنا گزارش کے سیاسی یم دوبارہ تم جے کوئی چلاج مت یا کیسے بیچ یا کورچ یا کاتش تمس گسن بین صحیح کہ کیاز آج تان چھ گم سخت کاروائی آج تان چھ کم مقوم اکو زوج مت مو کان تگمس وس کک وگناد بیگس کویت پھس کان وس کک ناد لہذا سخت کاروائی کے ساتھ اچھا ان کا کہنا ہے کہ ان کی یہ جو مطلب یہ جو ابھی ڈیڈ ہوئی ہے یہ لڑکی، اس کی 2 بیٹیاں ہیں. انہوں نے ان کو کال کی تھی ان کے مطلب لواکن کو کہ ان کے مطلب وہ جو بچیاں ہیں ان کو یہاں بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی آخری دفعہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ پائے. لیکن انہوں نے وہاں کے نمبردار وغیرہ انہوں نے وہاں سے صاف انکار کیا کہ ہم لڑکیوں کو نہیں بھیج سکتے، جبکہ وہ لڑکیاں ابھی بھی انڈر ایج ہے، وہ یہاں پہ آ سکتی تھی. وہ ان کے مطلب وہاں پہ جو ذمہ دار انسان تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ذمہ دار انسان ہیں، وہ ان کو آخری جو رسومات ہے یہاں پہ جو رائٹس آخری ہونے جا رہی ہے اس میں مطلب شرکت کر کے ان بچوں کو آخری بار اپنی ماں کا چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن ان کی طرف سے صاف انکار کیا گیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو ناظرین، یہ تھا لڑکی کا باپ جس نے ہمیں کچھ چند باتیں بتائی، اور اس کے کہنے کے مطابق کہ اس لڑکی کے آخری الفاظ یہی تھے کہ مجھے مارا گیا اور میں نے زہر نہیں کھایا. لہٰذا ہم اپنا حکام سے بھی اور پولیس پرشاسن سے بھی ہر کس سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ تحقیقات کی جائے اور اس کو مطلب انصاف دیا جائے. باقی ہمیں ہر ایک انسان کو ایک جٹ ہو کے ہمیں اس مہم کے خلاف مطلب جہاں کہیں بھی ایسی وائلیشن ہو رہی ہے کسی بھی گھر میں، اگر ہمارے آس پڑوس میں ایسی وائلیشنس ہوتی ہے تو ہم ایک ذمہ دار انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تاکہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی زبر یا زیادتی ہو جائے اور وہ اپنی جان گوا بیٹھے. لہٰذا ہمیں ذمہ دار انسان بننا پڑے گا. ہمیں کشمیر میں یہاں پورے اویئر ہونا پڑے گا. جہاں کہیں بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ایسا ہو رہا ہو، وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، تو ہم بولتے ہیں کہ رہنے دو، چھوڑو، ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ واسطہ نہیں ہے. لیکن
हमें सोशल प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा और एकजुट होकर एक आवाज़ उठानी होगी, ताकि कहीं पे भी ऐसे जुल्म ना हो, किसी भी लड़की के साथ ऐसा जुल्म ना हो। क्योंकि ये भी किसी ने पाली होती है अपनी बेटी, जो लखते जिगर होता है, पाल पोस के बड़ा करके उसकी शादी करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी, बाकी बची ज़िंदगी खुशहाली से बिताए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि हर कहीं ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, हर कहीं, हर किसी गांव में, गली चौराहों पे ऐसे किस्से रोज़ सामने देखने को मिलते हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक ज़िम्मेदार इंसान होके ऐसे मामलात के खिलाफ मतलब खड़े हो, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि दोबारा कोई भी शख्स ऐसी हिम्मत न करे ताकि वो किसी भी लड़की के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ करें या मार पिटाई करे या उनके मतलब परिवार को धमकियाँ वगैरह दे या कोई भी ज़ोर अप्रोच करके उनको दबाने की कोशिश करे। बाकी आप सब देख रहे हैं यहाँ हर एक आँख नम है इस टाइम। यहाँ पे मतलब हर आँख रो रही है कि ये जो लड़की थी बहुत ही मतलब इनके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम पहुँचे हैं मिलियाल में, जहाँ पे ये केस का मतलब घर है जिस लड़की का। मतलब हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ख़ास तौर पर, तो जो भी ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मेहरबानी करके इनको रोकिए। अपने आसपास कहीं भी आप अगर देखते हैं कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, किसी भी लड़की के साथ ज़्यादतियाँ होती है और वो अपनी बात कह नहीं पाती, तो बराए करम हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कायम करें। हमारा नंबर है 849181883038। मैं ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ सोशल प्रोटेक्शन का। लिहाजा आपसे इस्तदा की जाती है कि अगर आपको कहीं भी ऐसे केसेस सामने आए, कहीं भी किसी भी जगह पे, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके ब्लॉक में, कहीं भी ऐसा कोई वाक़या सामने आता है जहाँ पे लड़की के साथ ज़्यादतियाँ होती हो, तो बराए करम हमारे साथ रब्ता कायम करें। बाकी फर्दर उनके खिलाफ हम लीगल कार्रवाई खुद ही अंजाम दें। यहाँ देखिए, आप चारों तरफ देख सकें, सफ़ेद मातम छाया हुआ है। बहुत ही मतलब शरीफ घराने की लड़की थी कहा जाता है और इसके साथ बहुत ही ज़्यादती हो चुकी है। लिहाजा अगर कहीं भी ऐसी डोमेस्टिक वायलेशन होती है तो बराए करम हमारे साथ रब्ता कायम करें, ताकि हम ऐसे ज़्यादतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और अपने समाज को धीरे धीरे सुधार सकें। क्योंकि जो किसी की बेटी होती है, ये लखते जिगर होता है किसी का, ये तो दिया होता है उसने अपना जिगर निकाल के। तो दूसरों को भी चाहिए, दूसरे घर वालों को भी चाहिए कि उस लखते जिगर को, उसकी बेटी को अपनी बेटी समझकर उसके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक करे अपनी बेटी समझकर। ऐसा ना हो कि हम बहू समझते हैं उसको, फिर उसके साथ मतलब बहुत सारी ज़्यादतियाँ होती हैं। कहीं बच्चियाँ ऐसी होती है जो बोल नहीं पाती है अपने घर वालों को या मतलब किसी को भी नहीं बोल पाती है, जिसकी वजह से आखिरी अंजाम ये होता है जैसा इस लड़की का आखिरी अंजाम हुआ ऐसा होता है। बराए करम ऐसे वायलेंस को हमें रोकना होगा। हमें एकजुट होकर जो भी हमारे साथ मतलब यूथ जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है हमारे साथ। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और कहीं पे भी अगर ऐसे वाक़ात होते हों जिसमें पुलिस या कोई भी ऐसे मतलब नेगोशिएशन करे, तो हम उसके खिलाफ भी काम मतलब लीगल प्रोसीजर हमारा होता है, हम कार्रवाई अंजाम में ला सकते हैं।